the resistance of the electrolyte. Okay, so when current passes through internally, there is a additional potential drop because of the internal resistance. So the terminal potential difference across the two terminals, that is positive and negative terminal, is not equal to the EMF of the cell. This is something that we had already discussed. Okay, and how do we calculate what is the potential difference? For that, you need to know the current, and the value of current is I equal to E upon R plus I. So EMF E, R is the load resistance, and small r is the internal resistance of the cell. So based on this formula, you can find out what is the potential, terminal potential difference across the battery. Now, this is the same thing, right? So your current is E upon R plus R. This is something that you already know. Now what will happen if you have a series connection? You have n cells connected in series. अब इसको लिख लीजिए, ठीक है? And then I'll explain it. सर ऊपर का नहीं लिखना सर। आपको ऊपर का नहीं लिखना है, ये ऑलरेडी वो हम कर चुके हैं. Now this is series combination. Grouping of cell is a topic, and series combination is what you're supposed to write. तो थोड़ा लेफ्ट साइड लाओ ना। हो गया सर। हाँ देखिए, अब ये समझ में आया क्या हो रहा है. अगर आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे ना, you are assuming that all the batteries are connected in the same format, that is positive negative positive negative positive negative. That means all the positive terminals are towards the left and all the negative terminals are towards the right. So in this case, what will happen is that the pumping action is
constructive in nature. All the batteries are trying to push the charge from right to left. Okay, so they are in cooperation mode. Okay, if few of the batteries are with opposite polarity, like positive negative, and then maybe third is negative positive, उस केस में क्या होगा, जो पंपिंग ऑफ चार्ज का एक्शन था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज नाउ E3 इज एक्टिंग अगेंस्ट द एक्शन ऑफ अदर बैटरीज. ठीक है, तो दैट इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप में वी आर अज्यूमिंग दैट दे आर ऑल कनेक्टेड इन what with the same polarity in the same direction. So positive negative, positive negative, positive negative, like that. N batteries. Current I will pass same, right? Because all of them are in series, so current I to same hoga. That will also pass through the resistor R. Now you want to know what is the effective. You want to know what is the effective EMF offered by this grouping of cells, and what is the effective internal resistance offered by this grouping of cells. That is what your agenda is. तो हम क्या करना चाहते हैं, एक ऐसा डायग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें सेम रजिस्टर लोड is connected with one single battery which has a equivalent EMF and equivalent internal resistance. So what will happen is that इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो इन दो पॉइंट्स के क्रॉस किया जाएगा. लेट्स से दीज टू पॉइंट्स आर EV. So this is also EV. So whatever is the potential difference or terminal potential difference across this entire set of cell, वो एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए. सेम करंट शुड पास, same terminal potential difference should be there. Then only you can call this as equivalent, what, equivalent EMF. ये बात समझ में आई कि नहीं? तो आप क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे लूप की. देयर इज वन सिंगल लूप, so you will write E1 minus IR1 plus E2 minus IR2 plus E3 minus IR3, like that up to n terms. होगा कि नहीं होगा? ये फर्स्ट लाइन समझ में आई कि नहीं आई, ये वाली फर्स्ट एंड सेकंड लाइन? हाँ सर. इसका जो लास्ट टर्म है दैट इज IR, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड. दैट मीन्स व्हाट इज योर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल. आप कैसे ट्रैवर्स कर रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. Clockwise. क्लॉकवाइज कर रहे हैं पक्का ना? हाँ. ठीक. ठीक है, तो अब आपका इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आपका जो करंट का वैल्यू आएगा वो ये आएगा. ऑल द EMFs आर कोऑपरेटिंग, so EMF will become E equivalent will become E1 plus E2 plus E3, like that up to EM. And in the denominator you can see that it is R, that is load, plus summation of all the internal resistances. तो ये आपका टर्म किसका हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस का हो गया, और ये टर्म किसका हो गया, इक्विवेलेंट EMF का हो गया. आ रही है बात समझ में कि नहीं? So how will you write that? You will write this as this way, because now you are comparing it with the original combination. यहाँ पे भी ऐसे ही आता था ना, डिनोमिनेटर में you have E, this is load and this is internal resistance, उससे इक्वेट किया है हमने.
लिख लिया सबने ये? अब क्या होगा अगर आपकी कुछ बैटरीज रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्टेड है, तो रैंडम पोलैरिटी, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो फर्स्ट बैटरी, सेकंड बैटरी, ये सब राइट में पॉइंट कर रहे हैं, इनके नेगेटिव टर्मिनल्स, बट थर्ड वाले का अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है। तो व्हाट विल हैपन इज दैट दिस एंटायर कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज में जो जो अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है वो नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, बीच में कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, और जिनकी पोलैरिटी पॉजिटिव वाली इस साइड है वो सबके टर्म्स पॉजिटिव रहेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, देख रहे हो? तो ऐसे ये चल रहा है, बट ये नेगेटिव पॉजिटिव है, तो जहाँ जहाँ पे नेगेटिव है इट मीन पोलैरिटी इज रिवर्स्ड देन दी अदर वन, तो ये आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा। बट करंट पासिंग थ्रू दी सर्किट इज सेम, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा एज यू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वो तो आई वन आर वन, सॉरी आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री, लाइक दैट ही आने वाला है। इसलिए क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस विल रिमेन द सेम एज अर्लियर, ओनली इक्विवेलेंट ईएमएफ विल रिड्यूस। ये बात समझ में आ गई? इसको भी लिख लीजिए। ये हो गया सबका? जितना पढ़ाया है उतना टेस्ट के अंदर आएगा, डोंट वरी। ये लिख लिया सबने रैंडम ग्रुपिंग वाला, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ठीक है, टर्मिनल्स उल्टे कर देना उसमें। अब पैरेलल में क्या होता है देखो, हेलो, कोई डाउट है किसी को?
सर हाँ बोलो बेटा, मैं बोल रहा हूँ। बोलो अबे। सर एक बार वापस एक्सप्लेन करना ये करंट वाला। जीरो क्यों हुआ? ऐसा होता है बेटा, देखो अगर आपको इमेजिन करो आपको ईएमएफ निकालना है किसी सेल का, यू आर गिवन अ सेल, ये सेल है, ईएमएफ निकालने के लिए व्हाट डू यू एंश्योर दैट देयर इज नो करंट फ्लोइंग इनसाइड, होता है कि नहीं होता है? हाँ ये देखो, ये हमने किया था बहुत पहले, बहुत पहले नहीं मतलब रिसेंटली हमने किया था। ठीक है, ईएमएफ कैसे डिसाइड होता है? इफ देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द आउटर सर्किट, whatever is the potential difference, that is the terminal potential difference, will be the EMF, because now there is no loss of potential inside. अगर इसके थ्रू करंट नहीं जाएगा, स्मॉल आर के थ्रू करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाएगा। तो whatever potential drop is there between points A and point B, it is purely because of the electromotive potential of the two electrodes. तो जो आपने कैथोड और एनोड यूज किया है उसके इलेक्ट्रोमोटिव जो पोटेंशियल होता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट है तो 1.5 वोल्ट ही रहेगा। बट इफ यू हैव इंटरनल रेजिस्टेंस थ्रू व्हिच करंट इज आल्सो पासिंग, then the potential difference across A and B will be not 1.5 volt, it will be something different. So if you want to find what is the EMF of the cell, you have to ensure that this current is zero. कोई करंट एक्सटर्नल सर्किट में नहीं जाना चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि ये पूरा जो सेटअप है, ठीक है ना, ये जो पूरा सेटअप है इस सेटअप के अंदर इसके थ्रू करंट I1, इसके थ्रू करंट I2, इसके थ्रू करंट I3, तो ये I1 और इसका I2 मर्ज होकर I1 प्लस I2, फिर I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे ऐड होता जाएगा। तो फाइनली यहाँ से करंट कितना जा रहा है अक्रॉस द टर्मिनल, I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN। और अगर ये एक्सटर्नल लोड के थ्रू कनेक्ट कर दें और ये करंट अगर जीरो हो जाए, तो दैट मीन्स वॉट एवर इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट and this point will be equivalent to the EMF of this parallel combination. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का E इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको अज्यूम करना है टोटल करंट इज जीरो, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा अक्रॉस ए बी पॉइंट्स दैट विल बी द इक्विवेलेंट EMF। तो मैंने क्या कंडीशन लगा दी, फर्स्ट समेशन ऑफ ऑल द करंट इज जीरो, देन आई रोट द इक्वेशंस। तो E इक्विवेलेंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, वो कैसे निकलेगा, माइनस I1 R1 पोटेंशियल ड्रॉप प्लस E1। देखो तुम्हारा करंट ऐसे आ रहा है, तो तुम अगर यहाँ से इधर जंप करोगे तो पहले ड्रॉप आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का और फिर गेन आएगा EMF का। तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस I1 R1 प्लस E1, दैट शुड बी इक्वल टू E इक्विवेलेंट। ऐसे जितने भी आर्म्स है पैरेलल में, जितने भी आर्म्स है सबके लिए ये इक्वेशन लिखोगे तुम, माइनस I2 R2 प्लस E2 लाइक दैट अप टू IN RN प्लस EN। ये सारे के सारे टर्म E इक्विवेलेंट के बराबर हैं। So from these equations you can find out I1, I2, I3 up to IN, add them up, equate that to zero, you will find this relationship. So E equivalent is given by this expression in the parallel combination, and internal resistance is given by this expression. ये डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब ये ड्रॉ कर लो फटाफट। सर पर उधर वो लोड अगर हमने कंसिडर किया, करंट पास होते हुए भी कंसिडर किया, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या है सर? सेम ही रहेगा ना सर? क्यों सेम रहेगा, अरे लोड लगाया ही नहीं अभी हमने,
अगर लोड लगा दिया तब तो करंट फ्लो करेगा ही यहाँ से, तब तो हाँ सर, लेकिन टर्मिनल आपने बोला तब तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर नहीं होगा ना। अगर मैं लोड हटा दूं, अगर ये मैं लोड हटा दूं, ये मैंने लोड हटा दिया ना, यहाँ पे कहाँ है लोड, इसी लोड है हाँ नहीं है, उस कंडीशन में निकाला ना मैंने। हाँ ये लिख दो। ठीक है, join the next session immediately, don't wait for 5 minutes.